साउंड आ रहा है? Okay, so a fresh chapter, geopolitics. Now this is a very easy and commonsensical chapter. In the context of the examination, we may experience one question or two questions out of it. But that is true for all chapters. कोई भी chapter से the only expectation is to get one question or two questions. Because you know we have 90 questions in the AM session, 90 in the PM session. So in that case, out of the 90 which are in the AM session, economics is a part. And there are roughly around 40 or 42 chapters covered in the AM session. So in that case, if you apply the maths, 40 into 2, 80, 90 हो गया. So यानी कि we can't expect more than one or two questions from any chapter. ठीक है? When you are preparing for the examination later on, in that case, this chapter should be like, okay, ये तो आता है यार, जरा सा ऊपर से देखने से हो जाएगा, ठीक है ना? Because it is light, it's easy, easily communicable. Worst studying would be somebody really sitting down to keep on learning and investing time in this chapter. तो उस केस में there will be problem. Vaishnavi is saying that sir, I have already completed geopolitics from your previous video uploaded on the app. Should I continue or may I leave? You should leave. Okay? There is nothing great that मैं करके दूंगा. Of course, the style is different. Okay, I am teaching. I know the importance of teaching again. So I will put in my force. I will take some way, and then you will see. Last time तो ऐसे नहीं पढ़ाए थे. In that case, that got to be different. ना मेरे लिए भी तो monotonous नहीं होना चाहिए. But otherwise, the chapter is too easy for somebody to do it the second time. Precious time. I will take 10-12 hours to complete the chapter. आप क्यों 10-12 hours दोगे? उसमें आप 2-3 important chapters जो आपके pending है, questions and mocks है वो कर लोगे. ठीक है ना? So anybody wanting to do it again, I am assuming that the person is a great fan of me. काश वापस बैठ के सर बोल रहे हैं. Otherwise there is no sense. ठीक है ना? As it suits you. Presently, as we are having this class, geopolitical tension has cropped up. You're all aware of it. Khamenei. So Israel and US have attacked Iran, and then Iran has reciprocated. I don't know if you listened to him. Trump का 8 minutes का speech था, justifying as to why the attack was called for. Okay. The larger picture is that as a result of increase in geopolitical risk, the required rate of return, RE, required rate of return, goes up. And therefore, all asset classes, they have to fall because the value of any asset is the present value of the future cash flows discounted at the required rate of return. ठीक है? So accordingly, since आप ज़्यादा से pull करोगे, therefore the price should fall. Those assets which are riskier, जो बहुत ज़्यादा dependent हैं upon the global economy, on shipping routes, those companies or those stocks should fall more. Those which are safe haven which means gold, US Treasury, they tend to rise. So if you will check, I have not checked, but if you will check, obviously equity markets must be down. Equity markets के अंदर there are certain sectors which would be severely affected, like oil marketing companies, HPCL, BPCL. ठीक है? On the other hand, जो oil exploration companies है, ONGC and all that, they might be positively or neutrally affected because they tend to earn if oil prices rise. Then there are paints companies, there are airline companies which are going to be affected because उनके लिए oil is a major input. ठीक है? On the other hand, metals and all that, they don't have to do too much with this, at least in the short term. They might be positively impacted. Gold must be up. ठीक है? So that is the type of commonsensical discussion that is there. Chapter का 2 parts है. One part is boring. What is geopolitics? Terminology. थोड़ा सा boring है. Chapter का एक second part है, which is you are a portfolio investor. You are an equity research analyst. What do you do? Given that ये सब हो रहा है, तो what do you do? Because moral science का chapter तो है नहीं कि सबको भाईचारे से रहना चाहिए. ठीक है?
So as a portfolio manager, suppose if you understand a global portfolio manager who has exposures to multiple countries, multiple asset classes, billions of dollars, how do they react? How do they respond? How do they track? How do they measure geopolitical risk? That is something which is real, which portfolio managers do. Okay? So second part of the chapter is on that. It's a geopolitical risk chapter. हम लोग के क्यों दिया है? Why have they given this? We are not studying political science, so there was no need to give this chapter. So they've given this because they imagine that you are going to become, after 5 years, 10 years, 15 years, a portfolio manager who are handling public money. Okay, in Indian context, 50,000 crores, 1 lakh crores. So accordingly, वो hard-earned money है. What do you do in the context of geopolitical risk? The first part of the chapter is what is geopolitical risk, थोड़ा moral science type. Second part of the chapter is real chapter. इसका मतलब geopolitical risk से investor क्या करना चाहिए? Is it fine? मेरे को second part ज़्यादा interesting लगता है for obvious reasons. Okay, first part में terminology heavy है, but it's okay, it's easy. Lot of messages coming. Many are predicting that Nifty may go down to 15,000 due to US recession in accordance with war. कुछ भी. That's called immaturity at the retail level. क्या-क्या चीज हो गया? Okay, Russia invasion of Ukraine, ठीक है, and then Israel वाला episode, and these people are still in that. So never invest in markets at this immature stage. If you feel that बोला Nifty will go down to 15,000, इसका मतलब ही नहीं पता है. Another COVID has to happen. And वो भी COVID का बाप, because another COVID happens, so this time people will remember that last time COVID हुआ था तो क्या हुआ था, निकल गए थे बाहर. तो this time में COVID के होने से Nifty will not go down to 15,000. समझ गए? Some other thing may need to happen. Bhumi, I checked the market this morning. Vedanti, sir, yesterday market was down 1.25%. Yesterday कौन से market down हो गया? Okay. So, by chance जो international globally traded futures उसका बात कर रही हो, is it best time to invest in gold and silver? Investment advice मांग रहे हैं, सेबी मेरे को पकड़ के ले जाएगा, ठीक है? Anyways, तो in order to pick up the chapter well, मैंने 2 questions अभी निकाला, बस 10:30 बजे बैठ के आए. थॉट दैट इस तरह से बोरिंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा मॉरल साइंस, तो आई जस्ट picked up 2 questions which are related to the write-up. One question is based upon this. सुन लेना जिससे कि अपने साथ में रहे कि सर जो पोर्टफोलियो मैनेजर उसको सिनेरियो एनालिसिस कंडक्ट करना चाहिए. व्हाट एनालिसिस? सिनेरियो, which means that ये जो इजराइल यूएस ने अटैक किया ईरान पे, फिर ईरान ने काउंटर अटैक किया है. अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दुबई ये सब में रहते हैं. यू मस्ट हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम देम, ओके, गेटिंग अफ्रेड, पता नहीं क्या होगा. तो सर ये चीज़ जैसे नॉर्मली चीज़ शांत होती है वैसे शांत हो जाएगा या ये चीज़ पूरा का पूरा एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा? कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, उस पर कुछ बात हो रहा है कि वो शायद स्ट्रेट इज अंडर रिस्क एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं, टैंकर्स दे पास थ्रू दैट एंड सम ऑफ द टैंकर्स हैव बीन हिट. सो अकॉर्डिंगली व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब explosion can take place and what sort of supply chain disruptions can take place, nobody knows. So portfolio manager is a very shrewd person. He will consider scenarios, scenario 1, scenario 2, scenario 3. उन scenarios को probability देगा. तो ये वो वाला probability नहीं है कि अपने क्या बोलते हैं toss of a coin head tail 50-50%. इसलिए हम लोग बोलते हैं वो जो probability सारा बचपन में किया वाला कोई काम नहीं आता है, because real life में सारा probability is judgmental, सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी. कि मेरे को लगता है इसका एक्सप्लोड होने का चांस 20% है, मेरे को लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे ओपिनियन से, ठीक है ना. तो प्रॉबिलिटीज होगा सिनेरियोज का, और हर प्रॉबिलिटी में आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल होने वाला है. व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू योर पोर्टफोलियो? इज इट गोइंग टू गो अप? इज इट गोइंग टू गो डाउन? बाय व्हाट परसेंटेज? ठीक है. एंड व्हाट इज द स्पीड एट विच दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोड. तो मैंने 3 चीज बोला अभी जो कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है. One is likelihood, the second is impact, and the third is velocity. ये testable stuff है.
कि सर जियोपॉलिटिकल रिस्क में क्या 3 एस्पेक्ट्स देखा जाता है. यू लुक एट द लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी, यू लुक एट द इम्पैक्ट, ओके, एंड यू लुक एट द वेलोसिटी. तीनों वर्ड समझ में आ रहा है? लाइक्लीहुड क्या है इसका होने का, इम्पैक्ट क्या होगा, और वेलोसिटी मतलब एट व्हाट स्पीड इट विल शो अप. If I speak totally diagonally opposite, so there is something called cyber risk, there is something called climate risk, जिस पे अपने सब जी रहे हैं. Now that risk, cyber risk and climate risk are here to stay. They are thematic in nature. What nature? Thematic. We know that cyber risk is there. We know that climate risk is there. Accordingly, long term में धीरे धीरे उनका impact आएगा. जो long term investors हैं, they accordingly are investing in companies which are having high ESG scores. आपको ESG के बारे में पता होगा, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. जो कंपनीज का जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है, जो सोशली लेबर एंड ऑल दैट प्रैक्टिसेस देखती है, और जिनका गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन बढ़िया है, वो कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ऑल द पेंशन फंड्स एंड ऑल दैट. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दे लुक एट क्लाइमेट रिस्क, दे लुक एट साइबर रिस्क बिकॉज इट इवॉल्व्स स्लोली एंड स्लोली. जबकि एक्सोजीनियस रिस्क जो होता है ना, एक्सोजीनियस रिस्क मतलब सडन इवेंट, कुछ हो गया अचानक से, ये एक्सोजीनियस रिस्क था. ये जो एक्सोजीनियस रिस्क है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अफेक्ट ही नहीं करते. सपोज तुम्हारे पास खुद का पैसा है, तुम 100 करोड़ रुपए मार्केट पे लगा रखे हैं, एंड यू हैव अ लॉन्ग टर्म हॉराइजन 20 साल 30 साल, तो इन दैट केस तुमको क्या फर्क पड़ता है इजराइल ने ईरान पे क्या किया क्या नहीं किया. इनफैक्ट जिन लोगों को फर्क पड़ता है उसके कारण बाजार जोर से गिर जाएगा. 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में अगर ये स्ट्रेच हो जाए और अपने को वही चीज नीचे भाव पे मिल जाए, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. दे डोंट बिकम लाइक आज सुबह चेक करेंगे 9:30 बजे, व्हेन आई सेड आई डिड नॉट चेक फॉर दैट रीजन. ठीक है. तो सो इट डिपेंड्स ऑन योर हॉराइजन, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर. So if you are a long-term investor, exogenous risk is not something that you really get excited about, but you definitely are opportunistic for the long term. Long-term investors कैसे कमाते हैं? They earn because when these exogenous shocks happen, others react in a very very absurd fashion, and therefore the prices they fall down to such levels that becomes mouth-watering for these long-term investors. I don't know if some of you all attended the Indigo का session, okay, which I had taken. तो Indigo का दिसंबर में जो क्राइसिस हुआ था, okay, जहाँ पे सारे के सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे and all that stuff, ठीक है. तो उस पर भी ये डिस्कशन था कि it was an operational problem, it was not a structural problem, it was an operational problem with Indigo, and therefore perhaps gave an opportunity to investors to enter into Indigo at a good price, 10-15% lower. Please understand, although आप लोग less matured हो, but फिर भी the objective of doing the program is this only, that ultimately the one thing that is under our control when we are investing, the only one thing which is under our control is the price at which we are buying. बाकी कोई चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं. So anybody who is a long-term investor is very very patient and calm and not like affected by सब जन बाई कर रहे हैं, FOMO में नहीं जाते. जो स्टूड इन्वेस्टर्स है चल जाने, बाजार आज भी था, कल भी था, रहेगा, मौका मिलेगा, रुके हुए रहेंगे. तो लेट्स बी पेशेंट, ओके. दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बिल्टअप, मतलब जो मेंटल बिल्टअप है जोर का चाहिए. व्हेन यू गिवन योर इंटरव्यू इन अ पर्टिकुलर PMS और म्यूचुअल फंड और AIF एंड दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, ओके, पारंपरिक, तो इन दैट केस दे will look at your cultural build-up, कि आप किस तरह के पर्सन हो, ये आपका देखेंगे वो लोग. ठीक है. जब लोग को लगता है ये पर्सन थोड़ा शॉर्ट टर्मिज्म है, तो इन दैट केस यू डोंट कल्चरली फिट इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू से देयरफॉर यू शुड बी ऑफ दैट टाइप. मे बी यू आर द शॉर्ट टर्म टाइप, ट्रेडिंग टाइप. क्या उसका स्कोप है? बहुत स्कोप है. There's no doubt about it. I am not giving moral science ज्ञान over there. I am just trying to say different cultures और trading pits होते हैं और investment वो होते हैं. So ये सही आप बात क्यों कर रहे हैं? Because ये करिकुलम का पार्ट है ना. उन्होंने एक्सोजीनियस रिस्क का बात की है. एक्सोजीनियस रिस्क आर शॉक्स लाइक कोविड, ठीक है. तो जो कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है. Therefore the long term investor should not be impacted. Is it testable? Of course it is. It should be tested in the exam. ठीक है. तो जबकि एक्सोजीनियस शॉक्स का वेलोसिटी बहुत हाई होता है, मतलब फटाफट एकदम एस्केलेट हो जाएगा.
अचानक से। वो तो सैटरडे को हुआ, अगर ये मंडे मॉर्निंग आज हुआ होता कि इजराइल यूएस पे अटैक किया होता आज सुबह, सैटरडे को जो हुआ था ना वो आज सुबह हुआ होता 7 बजे 8 बजे, तब बाजार जो है वो और ज़्यादा डाउन जाता, बिकॉज तब जाके पैनिक और ज़्यादा है, बिकॉज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ, अचानक से पैनिक। तो ये अपने इंडियन मार्केट में जो है मंडे में क्या इफेक्ट आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन वो जो शॉक हुआ ना वो मंडे 9 बजे 9:30 बजे के पहले कितना देर पहले हुआ। अगर वो एकदम सुबह पहले शॉक हो जाए तो इन दैट केस भयानक आएगा। तो सर हम लोग क्या करेंगे, अगर सुबह 8 बजे हो जाए भयानक आएगा तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना, जैसे मेरे पास शेयर हम तो बेच नहीं पाएंगे। भाई अगर तुम्हारे पास ड्राई गन पाउडर है, पैसा है, तो उस केस में तो वो जो अचानक से फॉल आएगा उसमें बहुत ही लॉजिकली तुम बाई करने का अपॉर्चुनिटी देख सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तो मैंने 2-3 टर्म्स बता दिए चैप्टर से रिलेटेड। जो रिस्क है उस पर 3 चीज स्टडी करते हैं, एक है लाइक्लीहुड, दूसरा इम्पैक्ट, तीसरा वेलोसिटी। ये तीनों वर्ड देखो कंफर्टेबल है क्या, और इसको पढ़ाई वाइज मत ट्रीट करो, ट्रीट इट एज वेरी जनरल डिस्कशन, क्या बोल रहे हैं सब ऐसे। प्रोबेबिलिटी क्या है कुछ होने का, तो सिनेरियोज बनाते हैं, हर सिनेरियो में क्या इम्पैक्ट होगा, पोर्टफोलियो कितना डाउन होगा, और एट द सेम टाइम कितने जल्दी द स्पीड एट व्हिच इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। उसके लिए मैंने एक्सोजीनियस रिस्क वर्सेस थीमैटिक रिस्क का बात किया। टोटल 3 तरह का रिस्क दिया हुआ है, एक है इवेंट रिस्क, एक है एक्सोजीनियस रिस्क और एक है थीमैटिक रिस्क। क्या? इवेंट, एक्सोजीनियस और थीमैटिक। इवेंट, एक्सोजीनियस और थीमैटिक। ये जो हुआ है इजराइल ईरान वाला, ये कौन सा है? एक्सोजीनियस, अचानक से। इवेंट रिस्क जो होता है ना वो है सर 3 महीने बाद इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से 3 महीने बाद। मेरे को पता है कब इलेक्शन होगा, वी नो इट, उस इलेक्शन का आउटकम नहीं पता। इस बार मोदी सरकार गिर गया तो, इस बार सुपर मेजॉरिटी आ गया तो, अंडरस्टूड, दैट्स कॉल्ड इवेंट रिस्क, जिसका टाइम पता है अपने को, आउटकम नहीं पता। एक्सोजीनियस रिस्क का दोनों नहीं पता, बिकॉज अचानक से इट्स अ ब्लैक स्वॉन इवेंट। You must have heard this word black swan, because swans are not black, they are white. ठीक है, तो it's called black swan कि अचानक से आपको black swan दिखे, तो that's called exogenous risk, जिसमें long term investors should not be that way affected, but they should be definitely opportunistic कि मौके पे चौका मारने का मौका आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा बोला है लास्ट 10 मिनट से, वो पूरा का पूरा मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। किसी को लग रहा होगा टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर। उसके बाद सर ये जो आपने बोला सिनेरियो बना लेंगे, और आपने इम्पैक्ट का बात किया, और आपने इसका बात किया, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का। तो सर ये तो इवॉल्विंग है। जैसे आज अभी सुबह अपने को कुछ न्यूज़ है कि खमीनी मर गया है, ये लोग नया अपॉइंट कर दिए हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो करने वाले, हर बार बोलते हैं हम लोग इस बार जो करने वाले ना, देख लेना, दुनिया भी याद रखेगा, ईरान का बात करना, ठीक है, देव सेड। तो इन दैट केस इसका मतलब इट इज समथिंग विच इज इवॉल्विंग। तो पोर्टफोलियो मैनेजर इसको ट्रैक नहीं करेगा क्या, वो तो अपना सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। सो वी हैव अ चैप्टर इन क्यूएम कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी में वो वाला पार्ट एकदम भी नहीं करा है जो अपने 11-12 में होता है, ठीक है, कि डाइस उछालेंगे, कार्ड्स खेलेंगे, स्प्रेड आने का चांस क्या है वगैरह। तो उस पे दे हैव डिस्कस समथिंग कॉल्ड बेस थ्योरम। व्हाट थ्योरम? BAYE बेस थ्योरम। एंड बेस थ्योरम इज अबाउट updating your probability, is about updating your probability based upon new information। probability को update कीजिए। तो सर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो probability को update करेगा एज पर बेस थ्योरम, ऑफ कोर्स करेगा। करने के लिए वो क्या करेगा, हाउ विल ही ट्रैक? ही विल ट्रैक साइन पोस्ट्स। व्हाट? साइन पोस्ट। वंस अगेन साइन पोस्ट जो वर्ड गिवन इन द टेक्स्ट टेस्टेबल है, साइन पोस्ट्स। तो साइन पोस्ट मतलब अगर पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा क्लोज हो गया है, या अगर पता चलता है कि 3 से ज़्यादा टैंकर्स को बॉम्बार्ड कर दिया गया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपने आप में मन में डिफाइन कर लेगा। अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर फलाना हो गया तो यू विल डिफाइन दैट दीज आर द साइन पोस्ट। जैसे अपना गाड़ी चलता है, ओके, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, कौन सा मूवी आया था अभी, अरे कौन सा मूवी था इसका, पाकिस्तान वाला, धुरंधर। तो धुरंधर में व्हेन ही वाज सिटिंग एट द बैक सीट ना, क्या नाम था उसका, तो
एंड ही वाज स्लीपिंग एंड हाँ तो उस समय अचानक से जब वो देखा तो वो साइन पोस्ट था ना कि यार ये जंगल में कहाँ ले जा रहा है मेरे को। तो व्हाटएवर साइन पोस्ट का मतलब व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग आल्सो वी टेंड टू लुक एट कितना किलोमीटर बाकी है या व्हाटएवर दिस आर साइन पोस्ट ओनली। सो बेसिकली द साइन पोस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स आर गोइंग टू बी रेड फ्लैग्स। व्हाट फ्लैग्स? रेड फ्लैग्स। कि लग रहा तो यार कुछ होगा नहीं, इजराइल यूएस का शांत हो जाएगा, बट अगर ऐसा हो गया तो जाके मैं प्रोबेबिलिटी रिवाइज करूंगा और प्रोबेबिलिटी रिवाइज करके फिर मैं सोचूंगा कि अब मेरे को पोर्टफोलियो में हेज करना चाहिए क्या। पोर्टफोलियो में हेज करने का मतलब फॉर दोज पीपल हु हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या मेरे को पुट ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए? आई एम सेटिंग विद अ बिग पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो 40,000 करोड़ का है और उसका बीटा 2 है, बीटा 2 है, इसका मतलब निफ्टी 1% गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो 2% गिरता है। आई एम हैविंग अ 40,000 करोड़ इक्विटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड अक्रॉस स्टॉक्स with a beta of 2, which means that if Nifty falls by 1%, I will lose what? 2%. So if Nifty cracks 10%, I will lose 20%. I can't say that, oh, I am a long-term investor. एक चीज समझना, very important, जरा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग डिसाइड करते हैं वो लोग दूसरे का फंड मैनेज नहीं करेंगे, वो लोग में वो एपेटाइट नहीं है, अपने खुद का ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। The biggest example of this was late Rakesh Jhunjhunwala. He never took a penny from anybody else to manage. Given his name, he could have easily floated a mutual fund or whatever. License was like this. Because when you're managing your own money, now that time horizon is yours. Time horizon is yours. But when you're managing public money, the time horizon is the time horizon of the next marginal investor. बिकॉज जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, अगर वो आपका रिडेम्पशन पे पैसा मांगेगा तो आप क्या चीज का मॉरल साइंस डायलॉग दोगे? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म। जैसे म्यूचुअल फंड कम्युनिटी रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सिखा रखा है? विकेट पे टिके रहो, बाजार का अप्स एंड डाउन्स का मत सोचो, तो विकेट पे टिके रहो। लॉन्ग टर्म में भारत अच्छा है, इक्विटी मार्केट अच्छा है, बढ़िया करेगा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। व्हाई इज देयर सो मच ऑफ एडवर्टाइजमेंट अबाउट दिस? सो दैट रिटेल इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी में घुस जाए कि कभी भी इस तरह का एक्सोजीनियस शॉक्स होगा, अपने म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन नहीं करेंगे। समझ गया? तो अगर वो लोग ये घुसा दिया तो इसका मतलब अपना मार्केट कभी भी टैंक नहीं कर सकता है, बिकॉज मार्केट कब टैंक करेगा? जब म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांगेंगे। अगर वो लोग पैसा वापस मांगेंगे, द म्यूचुअल फंड्स हैव टू सेल द शेयर्स, इफ दे हैव टू सेल द शेयर्स, द शेयर प्राइस विल क्रैश। अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग, शेयर प्राइस कैन ओनली गो अप एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बटन ऑफ ग्रीन बाइंग and can only go down as a result of selling, and that selling pressure can only happen when investors have a run on the mutual fund कि भाई हम लोग को अपना पैसा वापस हो। So in that case the pressure, इसलिए the education, ठीक है? तो the reason that Indian markets have become more resilient because those category of investors who are most susceptible to fear and greed, I am talking about retail public, who are most susceptible to fear and greed are being lessened and taught again and again and again and again and again and again, टिके रहो, ठीक है? So that they don't sell, they do SIP। उनको और एक ज्ञान दे दिया गया कि आप SIP करो तो आपको मतलब ही नहीं है बाजार गिरा बढ़ा, आपका एवरेज में अच्छा दाम आएगा, अच्छा बढ़ेगा। SIP you must have heard, ठीक है? तो समोसा का एडवर्टाइजमेंट कि भाई 100 रुपये का SIP कर दो, ठीक है? बिकॉज योर 100 रुपये का माइंड विद सो मेनी millions of people का 100 रुपया becomes a very big amount of fund ना, coming to the mutual funds anyway. So फिर से रिकैप करें। One was कौन सा 3 टाइप का रिस्क था? इवेंट रिस्क, एक्सोजीनियस रिस्क एंड थीमेटिक रिस्क, है ना? तीनों के मन में सोच पा रहे हो? सोच लो एक बार, डिफाइन नहीं करना, मन में सोचना। मन में सोचना मतलब एग्जाम्पल तीनों का। इवेंट वाले का कौन सा एग्जाम्पल था? इलेक्शन। और एक्सोजीनियस का कोविड या जो भी चल रहा है, और थीमेटिक का क्लाइमेट, साइबर जो इवॉल्विंग। समझ गए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा चिंता कौन से रिस्क से है तीनों में? थीमेटिक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को थीमेटिक रिस्क से सबसे ज्यादा चिंता है, और अकॉर्डिंगली उसको अपने पोजीशन ऑफ द पोर्टफोलियो को वैसे कर लेना चाहिए, ठीक है? टुवर्ड्स ESG, ओके, या टुवर्ड्स कंपनीज व्हिच आर गोइंग टू बी लाइक ड्राइविंग साइबर दिस एंड दैट, ठीक है? बिकॉज अगर आपको लगता है बहुत बिजनेस आने वाला है तो कौन सी IT कंपनीज है जो साइबर सर्विसेज बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही है, या जिस अदर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो
वो लोग में साइबर रिस्क ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है, स्टफ लाइक दैट। उसके बाद रिस्क में अपने 3 पैरामीटर स्टडी करते हैं। व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ रिस्क दैट वी स्टडी? लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी हो गया, लाइक्लीहुड इज प्रोबेबिलिटी, दूसरा इम्पैक्ट और तीसरा velocity. Velocity is the speed at which the risk will jolt financial market, the speed at which it will jolt financial market, that's called velocity. When we say LFHS events, ये word बहुत common होता है, word used नहीं है text में, but I can't avoid using the word LFHS events, low frequency high severity, क्या? Low frequency high severity, LFHS events बहुत कभी कभी होता है, पर जब होता है तो एकदम फाड़ देते हैं, LFHS इवेंट्स, ठीक है। जबकि HFLS इवेंट्स इज लाइक हाई फ्रीक्वेंसी लो सिवियरिटी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी लो सिवियरिटी। सो व्हेन आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम 1990s में हम लोग के आए दिन दूरदर्शन पे, दैट टाइम डीडी दूरदर्शन वाज देयर, आता था इतने आतंकवादी मुठभेड़ में कश्मीर में मारे गए, इतने जवान शहीद हुए, एंड इट यूज्ड टू बी एवरी डे, दोपहर में भी, सुबह भी, रात भी। तो इन दैट केस इवन फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स दैट वाज अ नॉन इवेंट, बिकॉज ठीक है डिस्काउंटेड है कि इट विल हैपन, आई एम नॉट ट्राइंग टू से नॉन इमोशनली, बट इट वाज डिस्काउंटेड दैट इट विल हैपन, इट्स लाइक अ हाई फ्रीक्वेंसी लो सिवियरिटी इवेंट अनलेस समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंस, ठीक है। तो देन आई आल्सो स्पोक अबाउट कि पोर्टफोलियो मैनेजर सिनेरियो एनालिसिस एंड साइन पोस्टिंग करेगा, सिनेरियो एनालिसिस एंड साइन पोस्टिंग, अलग अलग सिनेरियो बनाएगा कि इस इवेंट का क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी देगा, इम्पैक्ट लिखेगा, ठीक है, वेलोसिटी का स्कोर लिखेगा एंड अकॉर्डिंगली, एंड उसके बाद जाके उन प्रोबेबिलिटी को अपडेट करेगा बेस्ड ऑन साइन पोस्ट, बेस्ड ऑन साइन पोस्ट, क्या ये हो गया तो दिक्कत है तो अपने चेंज करेंगे, तो रेड अलर्ट्स, ठीक है ना। इम्पैक्ट में और भी कुछ लिखा हुआ है, वही बता दो, तो मेरा 2 LOS कंप्लीट हो जा रहा है बातों ही बातों में, ठीक है, टोटल 6 LOS है, 2 LOS इज ओवर, वेरी गुड, लेट्स एंजॉय। तो क्या लिखा हुआ है इम्पैक्ट के बारे में? इम्पैक्ट का एक तो हाई इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट होते हैं, उसके अलावा इम्पैक्ट होता है डिस्क्रीट इम्पैक्ट ब्रॉड इम्पैक्ट, क्या बोला? डिस्क्रीट इम्पैक्ट ब्रॉड इम्पैक्ट, ठीक है। तो डिस्क्रीट इम्पैक्ट इज एन इम्पैक्ट व्हिच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर सेक्टर और अ पर्टिकुलर कंपनी, अ पर्टिकुलर सेक्टर और अ पर्टिकुलर कंपनी, एंड ब्रॉड इम्पैक्ट इज इम्पैक्ट व्हिच अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी और द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो किस टाइप का इम्पैक्ट है, डिस्क्रीट इम्पैक्ट है कि ब्रॉड इम्पैक्ट? वन सेकंड, कॉमन सेंसिकल डिस्कशन। तीसरा, इम्पैक्ट किस समय है इकोनॉमी में? जब इकोनॉमी अप साइकिल में है, एक्सपेंशन फेज, या इकोनॉमी डाउन साइकिल में है, कॉन्ट्रैक्शन फेज। तुमको खुद ही कॉमन सेंस है, किस समय एक्सोजीनियस शॉक होने से इकोनॉमी का ज़्यादा माने वो रिस्क ज़्यादा खराब करेगा, द इकोनॉमी इज इन अप साइकिल और डाउन साइकिल? डाउन साइकिल माने यू आर ऑलरेडी, आपके थोड़ा बहुत बुखार या कुछ हो रखा है, एंड उसी समय माने यू कॉन्ट्रैक्ट अ सर्टेन डिजीज, इट विल रियली हिट यू ना, अंडरस्टूड? लाइक इट हैपेंड इन द टाइम ऑफ कोविड के टाइम पे, द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 2016-17 onwards, because the government took some structural reforms which are long term beneficial, like demonetization, like financialization, like GST. These were good reforms, but they are going to be good in the long term, but in the short term there is a pain. तो short term pain से गुजर रहा था, we were not passing through a recession. India में we can't use the word recession, we were passing through globalization. What? Globalization. Our growth rate had come down. Government did a number of things, but nothing was happening. Our growth rate started touching levels of 5.5%. And then September 2019, Nirmala Sitharaman announced a major corporate tax cut. Corporate tax cut. That pulled up the sentiment. पूरा का पूरा sentiment pull up हो गया. But उसी समय, September 2019 बोल रहा हूँ मैं, and then Jan-Feb से क्या हो गया? COVID. So it's like hitting it at the wrong moment. You can understand impact उस समय और ज़्यादा grave होगा if the economy is in a downturn, ठीक है, तब जाके कोई शॉक होता है। तो अगर बूम में है शॉक तो एक तरह से वो बेनिफिशियल है। Like if you talk about the Adani episode, Hindenburg, माने that thing you all were not studying with me, but I brought out 3 or 4 podcasts which were not in the usual stream जो बाकी लोग बोल रहे थे, and I was not like aligned to Adani, aligned to Modi, वो सब कोई बात नहीं, मैं मार्केट्स का बात कर रहे थे। I was just feeling that Adani उस समय प्राइम पे चल रहा था, P ratio was like 70 times,
Debt equity ratio has become 140 times. There was something required to cool it down. वो something क्या होता? काश वो लोग का बिजनेस बर्बाद हो जाता, फैक्ट्री में आग लग जाता, कुछ की कैश फ्लो बंद हो जाता, पर वो सब नहीं हुआ. इंस्टेंट एक रिपोर्ट आया जो पूरे के पूरे अदानी स्टॉक को डाउन पे ले आया. एक तरह से अदानी must have said thank you. When you are looking at the media, but I can't explain to you, they must have said thanks to Hindenburg कि हम इतना फूले हुए थे, आपने कुछ ना कुछ करके हमें सुसा दिया उस समय, because that is required. You can't keep on rising. समझ गए? तो इम्पैक्ट का बात कर रहा था. तो इम्पैक्ट could be discrete, impact could be broad. वो पॉइंट क्लियर है? तो इम्पैक्ट कब आता है? Does the impact come when you are in an up cycle? Very good, I think. शॉक हो रहा उस समय. और you are in a down cycle, very painful. डाउन साइकिल के टाइम पे आना. समझ गए? तो दिस इज व्हाट इज रिटन इन LOS, आई थिंक D and F. एक बार LOS का दर्शन करते. These are the 6 LOSs. Please have a look at LOS number D and LOS number F. LOS D है describe geopolitical risk. हो गया आपने. 3 तरह का रिस्क. इवेंट, एक्सोजीनियस, थीमेटिक. रिस्क में देखना है 3 चीज, लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट एंड वेलोसिटी. ठीक है. तो और ठीक है. और द फैक्ट दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, नहीं करता है, वगैरह वगैरह. ठीक है ना. कशिश गुप्ता इज सेइंग थीमेटिक रिस्क को रिपीट कर दो प्लीज. तो कशिश, थीमेटिक रिस्क का मैंने कुछ बोला ही नहीं था ज़्यादा. मैंने तो उसका एग्जाम्पल दिया था. क्लाइमेट रिस्क, साइबर रिस्क, जो धीरे 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 इवॉल्व करता है. ठीक है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट रिस्क सिंस एजेस. We have been talking about cyber risk very very actively now, given all the AI developments की voice cloning, face cloning. तो कितना ज़्यादा cyber risk और ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ने वाला है. ठीक है. तो that is what I spoke about. मैंने define नहीं किया कशिश. ठीक है. अब definition मेरे को याद नहीं क्या दिया होगा, and I'm not interested. LOS number F है describe the impact of geopolitical risk on investments. Look at the LOS. इसीलिए तो चैप्टर कर रही है कि सर हमें क्यों पढ़ा रही है ये चैप्टर. इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट है कि पोर्टफोलियो मैनेजर will conduct scenario analysis, will do signposting for the purpose of understanding the impact. मैंने 2 क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं LOS नंबर D और F को कवर करने के लिए. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक. यू विल बी एबल टू एंजॉय द सेम. सी. और थोड़ा हड़बड़ी भी हुआ है, मिस्टेक हो सकता है. ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव यूज्ड Claude for the purpose of creating the same. I did not check the answers वगैरह. Let's see. हो सकता है मिस्टेक हो. An equity analyst is valuing Orbit Electronics, a company that imports key components through global shipping routes. ठीक है. इस कंपनी को इवैल्यूएट करें. नहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं, इक्विटी रिसर्च का क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर कंपनी का. और ऑर्बिट का दिक्कत क्या है, वो इंपोर्ट करता है कंपोनेंट्स थ्रू ग्लोबल शिपिंग रूट्स. अगर वो इंपोर्ट गड़बड़ होगा तो उस केस में उसका आउटपुट नहीं बनेगा. पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस. बिफोर एनी जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन द एनालिस्ट एक्सपेक्ट्स नेक्स्ट ईयर्स कैश फ्लो टू इक्विटी ऑफ 24 पर शेयर. ये हो गया C1. क्या हो गया? C1. नेक्स्ट ईयर्स कैश फ्लो C1. लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 5%. ग्रोथ 5% पर एनम फॉर एवर. 5% ग्रो करता रहेगा. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11%. आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% है. इसका मतलब एक बार मैं फॉर्मूला पे नहीं जा रहा हूँ. जो 1 साल बाद आने वाला है, अगर मैं शेयर बाई करता हूँ, मेरे पास 24 आने वाला है. क्या आने वाला है? 24. 24 के बदले आज आई एम रेडी टू पे 24 डिवाइड बाय 1.11. डोंट कैलकुलेट प्लीज. 24 बाय 1.11. ओके. 22 रुपया करीब. उसके नेक्स्ट ईयर मेरे पास आने वाला है 24 इंटू 1.05. 24 से 5% ज़्यादा. एंड आई एम रेडी टू पे डिवाइड बाय 1.11 स्क्वायर. डिवाइड बाय 1.11 स्क्वायर. मे बी वो आएगा अराउंड 19 या 18. 3 साल बाद आने वाला है 24 इंटू 1.05 स्क्वायर. 24 इंटू 1.05 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.11 क्यूब. 3 साल बाद आने वाला है तो आएगा करीब 16. आई एम रेडी टू पे 16 फॉर इट. डॉट 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 टू इंफिनिटी. डॉट 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 टू इंफिनिटी. सिंस दिस मे बी अ फर्स्ट क्लास
for some people, because of which I am slowing down. Do not mind it. बाकी लोग के भी अच्छा ही है कि the intrinsic value of the asset should be 24 by 1.11 plus 24 into 1.05 by 1.11 square plus 24 into 1.05 square divided by 1.11 cube plus dash 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 to infinity. Are you getting me? This is the value of the asset today. Value of the asset today. उसके बाद किसी ने APGP किया है अगर बचपन में तो उसको दिखेगा, सॉरी फॉर डाइवर्टिंग, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकेंड टर्म है इसको डिवाइड करोगे ना, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यू विल फाइंड द कॉमन रेशियो इज 1.05 बाय 1.11. कर लो डिवाइड मन में. सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इट्स 1.05 बाय 1.11. इफ यू डू थर्ड टर्म divided by second term, it is 1.05 divided by 1.11. So it is an infinite GP series where this is the first term C1 and the common ratio is 1.05 by 1.11. जिसने infinite GP किया उसको याद होगा sum total of an infinite GP होता है A divided by 1 minus R. A शायद छोटा लिखते हैं, मैं बड़ा लिख दिया, काफ़ी टाइम हो गया APGP किए हुए. A by 1 minus R. So A is what? 24 by 1.11 and 1 minus 1.05 by 1.11. So this will come to 24 divided by 0.11 minus 0.05. So suppose अपने बीच में एक आर्ट्स स्टूडेंट है. Sir, I joined CFA because you had in your webinar said that इसमें कोई मैथ्स नहीं है. It's not required all that. जिसको वो याद है वो कोई शेयर मार्केट में कमा नहीं पाएगा. ये सब अगर कर रहे थे. See that the formula is the first cash flow divided by I minus G. The formula is C1 divided by I minus G. How do we take it? कि सर वो जो C1 है अब वो ग्रो करने वाला है G से, पर उसको पुल करना है I से, तो I के कारण वो कम होगा, G के कारण वो बढ़ेगा. There is a fight going on in the denominator. I minus G is the fight. I is pulling it down, G is pulling it up. That's the fight. C1 by I minus G. What is the answer? 24 by 0.06. What is the answer? 400. Yes, please. What is the answer? 400. 400 should be the share price today. 400 should be the share price today. 24 divided by 0.11 minus 0.05. 400 should be the share price today. Orbit का दाम अभी 400 रुपया होना चाहिए. ठीक है? Orbit का दाम 400 रुपया होना चाहिए. All of you must be prima facie okay. ठीक है? कि this is the most popular formula in equity valuation. C1 by I minus G. We call it growing perpetuity. ठीक है? Constant growth rate forever. So 400 आ गया. I'm just marking over here. Intrinsic value is equal to 400. Yashika, you have posted a doubt. There is no scope of replying to that bilaterally right now. Continue. The stock is valued using a constant growth model. वही constant growth model था C1 divided by I minus G. A sudden geopolitical shock disrupts the shipping routes, जो अभी हुआ है, Strait of Hormuz, and raises energy and freight cost, जो अभी हुआ है. Shipping companies का बम हो गए. कौन से companies का? Shipping. ठीक है? With the डर that कहीं हमारा शिप ही उड़ गया तो, so therefore they have to buy insurance and insurance का cost has shot up. It's all related. Shipping companies का freight has gone up, insurance cost has gone up. The analyst now revise the assumptions as follows. और ये जो political लोग हैं ना, जिन लोगों को पता था ये सारा, वो लोग पहले से ही accordingly invest कर दिए थे और market को short कर दिए थे. तो irrespective of whatever we study in CFA, if you ask me, sir, अगर मेरे पास ये possibility है कि मेरा बहुत बड़ा political leadership connect रहेगा, ठीक है, और हमको सब पहले से पता चल जाएगा, तो क्या मेरे को ये सब पढ़ाई का दरकार है? नहीं, कोई दरकार नहीं है. There is no need that you are God, ठीक है, if you are in that position.
A sudden geopolitical shock disrupts the shipping routes and raises energy and freight costs. The analyst now revises the assumption as follows. अभी उसका assumption है next year's cash flow to equity falls by 10%. पहले कितना था? पार्टिसिपेट करो, कितना था? 24. तो अब कितना हो जाएगा? 21.6. 24 का 90%. 21.6 is C1. Long-term growth rate remains intact at 5%. Growth rate long-term change नहीं हो रहे. Required return rises to 12% because investors now demand a higher geopolitical risk premium. Once again, time value of money, first class, LOSA. Okay, what are the components of required rate of return? Risk-free real rate of return plus inflation premium plus risk premium. उसी का बात कर रहे हैं risk premium. तो शेयर का दाम क्या हो गया? 21.6 divided by 0.12 minus 0.05. 21.6 divided by I minus G divided by 0.12 minus 0.05. What is it? 308.57. ठीक है 57. तो शेयर का दाम 400 से गिर के 308.57 हो जाएगा. This is the impact of geopolitical risk on this particular stock. ठीक है? Caliber lies in estimating कि कैश फ्लो 10% गिरेगा, इसका हिसाब कैसे किए, उसका जो एनालिसिस चाहिए कि इनपुट कॉस्ट आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए रिक्वायर थरो एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. इट इज नॉट दैट इजी. ठीक है? उसके अलावा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% क्यों होगा? वंस अगेन दैट कुड बी सब्जेक्टिव बट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सम व्यू. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, द परसेंटेज डिक्लाइन इन द स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू. तो 400 से 308.57. व्हाट्स द फॉल? 308.57 डिवाइड बाय 400, द होल थिंग minus 1. 308.57 the whole divided by 400 the whole thing minus 1. Yes? 23%. So the answer is 23%. Option number B. 23%. Option number B. Sir, क्या इस चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है? No. न्यूमेरिकल नहीं देगा. बट क्या है, हमारे तो न्यूमेरिकल ऐसे भी है ही ये वाला. दूसरी जगह हम इस चैप्टर को ज़्यादा इंटरेस्टिंग करें और एक्सप्रेसिवली समझ रहे. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन, यही न्यूमेरिकल आइटम सेट लिखा हुआ है. तो मैंने जब प्लॉट में प्रॉम्प्ट डाला था तो मैंने बोला था बी एक्साइटिंग, मेक इट न्यूमेरिकल. नंबर्स बोला, लोग को नंबर से लॉजिक बेटर समझ में आता है. और ये मैंने मोस्टली देखा है स्टूडेंट्स को अपील करता है कि तेरा नंबर्स, नॉट अलजेब्रा, नॉट अल्फा बीटा, ठीक है, नॉट मॉरल साइंस, बट नंबर्स उसके हेल्प से लॉजिक. जियोपॉलिटिकल रिस्क, सिनेरियो एनालिसिस एंड साइन पोस्टिंग. राघव मैनेजेस a 100 crore equity portfolio invested in Indian companies that are sensitive to imported energy cost and global shipping routes. He is worried about geopolitical developments affecting oil flows and trade routes. Instead of making a single point forecast, he builds 3 scenarios for the next quarter. तो सिनेरियो टेबल दिया हुआ है. तो सिनेरियो ए, टेंशन्स आर गोइंग टू ईज, सब नॉर्मल हो जाएगा एंड शिपिंग नॉर्मलाइजेस. उसका चांस 50% है राघव के अनुसार. और अगर ऐसा हुआ तो पोर्टफोलियो विल प्रोवाइड अ रिटर्न ऑफ 6% दिस क्वार्टर. टाइम फॉर ऑल दिस टू हैपन, मतलब गला मिल के, हाँ ठीक है भाई, तुम भी खुश हम भी खुश, ये सब मिलने में मोर देन 1 मंथ हो जाएगा. वेलोसिटी इज लो, वेलोसिटी इज लो. Scenario B, a scheduled policy event leads to new tariff and delays. इसके बीच में ही कोई scheduled event है, ट्रम्प का कुछ नया अनाउंसमेंट था बीच में, पहले से पता था अपने को, तो ऐसा हो जाएगा. तो बोला प्रोबेबिलिटी 30% और टैरिफ अनाउंस कर दिया ट्रम्प, ठीक है, और डिलेज हो गया तो 5% पोर्टफोलियो डाउन होगा विद इन 3 वीक्स. दिस इज हाई वेलोसिटी, विद इन 3 वीक्स. अ सडन जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन डिसरप्ट्स ऑयल एंड शिपिंग रूट्स. पूरा एक्सप्लोड हो गया. 20% चांस है, 14% फॉल विद इन 3 ट्रेडिंग डेज, हाईएस्ट वेलोसिटी. तो आपको तीनों का फील मिल रहा है. इट्स नॉट दैट दिस क्वेश्चन विल कम, बट जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में, बिलीव मी यू वुड हैव क्राइड रीडिंग द सेम. ठीक है ना? और ये करने से आपका हो गया बहुत बढ़िया से. Raghav uses the following internal priority score to decide which political risk deserves the most attention. तो उसने कोई पाइथन का कोड दिया होगा, देने दो नीचे. Where velocity equal to 3 if impact shows up within 1 week. Velocity score equal to 2 because इसको कैसे measure करें? बाकी दोनों तो maths था. Probability was maths. Can you see?
पोर्टफोलियो रिटर्न वाज मैथ्स, तीसरा वाला मैथ नहीं था ना, इट वाज अ कैटेगोरिकल हैपनिंग, तो उसको भी अगर मैथ में डाल दें, वी विल बी एबल टू कंप्यूट अ कंबाइंड स्कोर कंबाइनिंग ऑल द थ्री, करेक्ट। तो उसको कंबाइन करने के लिए ऐसा कर लिए कि अगर 1 वीक के अंदर होता है तो वेलोसिटी इज 3, अगर 1 मंथ के अंदर होता है तो वेलोसिटी इज 2, और अगर 1 महीने के भी बाद होता है तो वेलोसिटी इज 1। ठीक है, सब्जेक्टिव। A week later, 3 signposts flash red. अब बेस थ्योरम वाला पार्ट, ये सब 3 चीज हो गया। Oil prices rise sharply. War risk insurance costs jump. 2 major shipping operators suspend transit on a key route. 2 major shipping route operators बोले हम लोग अब जाएंगे नहीं उस रूट से, बड़ा वाला रूट लेंगे, ठीक है ना। राघव रिवाइजेस द प्रोबेबिलिटीज एज फॉलोज। तो अब कर दिया 35 30 35, पहले था 50 20 30, ऐसा कुछ था 50 30 20। द रिटर्न इम्पैक्ट ऑफ ईच सिनेरियो स्टेज अनचेंज्ड, बोला वो जो रिटर्न वाला कॉलम था वो वही है, इम्पैक्ट इज सेम, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, ठीक है। ही इज आल्सो कंसीडरिंग अ हेज, अब वो हेज सोच रहे हैं। द हेज वुड कॉस्ट 1% ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न इन एवरी सिनेरियो। हेज मतलब पुट का कॉस्ट, किसका कॉस्ट? पुट का। अगर कॉल पुट सुना हो तो पुट ऑप्शन बाई करेगा, तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ेगा ना, तो द कॉस्ट इज 1% ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, बट इट वुड इम्प्रूव सिनेरियो सी रिटर्न फ्रॉम -14 टू -8। बट ऐसा करने से सिनेरियो सी में अपना जो 14% फॉल हो रहा था वो -8 हो जाएगा। तो वी शुड नॉट गो फॉर दिस बिकॉज 1% कॉस्ट लग रहा है, बट वी शुड गो फॉर दिस बिकॉज सिनेरियो सी का रिटर्न -14 से -8 हो जा रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हेज करे कि नहीं करे, बताइए गिवन दिस मैथ्स हेज करे कि नहीं करे। अंडरस्टूड? ऑब्वियस है क्वेश्चन क्या होने वाला है, हो सकता है इसका स्कोर निकालने बोलने वाला है। तो इफ यू रिमेंबर, मोर देन 1 मंथ का स्कोर 1 था, विद इन 3 वीक्स यानी उसका स्कोर 2 था और इसका स्कोर 3 था। तो इन दैट केस इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई 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 करेंगे और ऐड कर देंगे, अगर ऐड नहीं तो अलग अलग तीनों वाले सिनेरियोस का कंपोजिट स्कोर आ जाएगा। तीनों का कंपोजिट क्या आ जाएगा? स्कोर। तीनों कंपोजिट स्कोर मे बी दैट इज यूज्ड टू ट्रैक। बट उससे भी अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये पूछेगा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो इससे आएगा, निकालो प्लीज। 0.5 into 6 plus 0.3 into -5 plus 0.2 into -14, .5 into +6 plus 0.3 into -5 and 0.2 into -14। जैसे 0.5 into 6 क्या आ रहा है? 3। 0.3 into -5 क्या आ रहा है? -1.5। और 0.2 into -14 क्या आ रहा है? -2.8। क्या तीनों का टोटल क्या आया? 3 - 1.5 - 2.8 -1.3%. This is the expected quarterly return on the portfolio. I hope this is fine. This is called summation Px, and this is not a formula. Probability into outcome plus probability into outcome plus probability into outcome. If your calci is in the AOS mode, which mode? AOS, not CHN, then in that case it can easily handle. केवल दिक्कत क्या है, आपने जो 11-12 में कैलकुलेटर यूज करते थे, 11-12 में जो कैलकुलेटर यूज करते थे उस पर स्क्रीन पे दिखता रहता था जो टाइप करते थे, तो इट वाज इजी। ये वाले कैलकुलेटर में ये बोलते हैं भाई हम कर रहे हैं तो भरोसा रखना। तो when you do 0.5 into 6 plus 0.3 into 5 plus minus plus 0.2 into 14 plus minus, तो it is doing it inside। तो मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर सकता हूँ, okay, so I can't focus on the calci right now। -1.3% is the expected return। उसके बाद probability क्या क्या हो गया था? मेरे ख्याल से हो गया था probability 35%, 30% एंड 35%। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये हो गया था क्या? 35, 30 एंड 35 ये probability हो गया था। फिर से expected return निकालो, 0.35 into 6, आपको अलग अलग करना है तो 0.35 into 6 STO1, 0.3 into 5 equal to plus minus STO2, 0.35 into 14 equal to plus minus STO3, RCL1 plus RCL2 plus RCL3।
Okay, 0.35 into 6 equal to STO1, 0.3 into 5 equal to plus minus STO2, 0.35 into 14 equal to plus minus STO3, RCl1 plus RCl2 plus RCl3. What is it coming? Minus 4.3% आ रहा है. This is coming to minus 4.3%. Okay, this is coming to minus 4.3%. किसी को भी अगर क्लास ज्वाइन किए हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है और अगर वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकाल सकता है जस्ट बिकॉज कुछ आउटकम्स नेगेटिव में दिए हुए, सीरियसली यू शुड सिट डाउन कि यार एक बार ये तो निकालें, वरना हाउ डू आई जस्टिफाई इफ यू आर इन द क्लास मोर देन 6 months, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना शुड बी एकदम सिंपल. ठीक है, माइनस 4.3%. बट अगर अपने हेज कर लेंगे तो ये वाला रिटर्न होगा 5 बिकॉज 1% हेजिंग कॉस्ट, ये वाला रिटर्न होगा -6 1% हेजिंग कॉस्ट, ये रिटर्न -14 से -8 हो गया था. लास्ट वाला रिटर्न -14 से -8 हो गया था और -1 क्या हो गया -9. आई होप यू आर ओके. हेजिंग कॉस्ट को मैंने रिटर्न से 1% लेस कर दिया. नाउ प्रोबेबिलिटी 35 से फिर से निकालो. 0.35 into 5 equal to STO1, 0.3 into 6 equal to plus minus STO2, 0.35 into 9 equal to plus minus STO3. Okay, 0.35 into 5 equal to STO1, 0.3 into 6 equal to plus minus STO2, 0.35 into 9 plus minus STO3. किसी का भी फर्स्ट क्लास है वो सोच रहे यार मेरे को तो कैल्सी आता नहीं है. कैल्सी बड़ी बात थोड़ी है, वो तो जान जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. आप अपने कॉपी में कर सकते थे. इनफैक्ट इफ योर एटीट्यूड वाज गुड यू कुड हैव डन इन द कॉपी. 0.35 into 5 इज हाउ मच? ठीक है, 0.3 into -6 is how much and 0.35 into -9 is how much? You could have done it like this if you are actually in the proper frame of mind instead of just sitting. Anyways, क्या है आंसर? -3.2%. तो इन द रिवाइज्ड सिनेरियो रेड फ्लैग के बाद अगर हम लोग हेज नहीं करते हैं तो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न -4.3% है और हेज करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न -3.2%. आर यू सी? गिवन दैट रेड अलर्ट आ गया है, अभी हम लोग हेज नहीं करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का -4.3% है और अदरवाइज -3.2% है. क्या करना चाहिए? हेज करना चाहिए. द पोर्टफोलियो विल फॉल लेस. Instead of falling 4.3, the portfolio will fall 3.2. It is showing how decision making is taken by portfolio managers considering the tools of geopolitical risk indicated in this chapter. ठीक है ना? They are showing how geopolitical risk actually portfolio managers लोग handle करते होंगे. ठीक है? Somebody can do it in a more sophisticated level. नहीं सर वो velocity को अलग तरह से measure करेगा, सिनेरियोस को अलग तरह से करेगा, उसका और सोफिस्टिकेटेड मॉडल हो सकता है. बट दिस वाज अ सिंपल डिस्प्ले ऑफ व्हाट इट इज डन. इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रोबेबिलिटीज द पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड क्वार्टरली रिटर्न वाज -1.3 था. ए बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रोबेबिलिटीज व्हिच सिनेरियो हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्कोर. उस स्कोर वाला पार्ट वो था जो तीनों को मल्टीप्लाई करते ना अपने ये 50 into 6 into 1, it's like 300, 30 into 5 into 2, and then 20 into 14 into 3. So 20 into 14 into 3 सबसे बड़ा है. The third वाला scenario has the highest score. सर क्या हमें जानना पड़ेगा इस तरह से मल्टीप्लाई करना है? नहीं, ये न्यूमेरिकल इज नॉट टेस्टेबल. बट तुम खुद रीड करना बुक में जो लिखा हुआ है और तुम बोलेगा नहीं सर आप जो बताए एकदम बैठ गए. ऐसे बैठता नहीं. डोंट टेक इट टू द एक्सट्रीम्स. कि हम कैसे जानेंगे वेलोसिटी 1 2 3 बोलते हैं यार, ये इलस्ट्रेशन है. तो सिनेरियो सी का सबसे हाईएस्ट आएगा 20 into 14 into 3. After the signposts appear and probabilities are revised, the portfolio's new quarterly return is -4.3. -4.3. If Raghav buys the hedge, the revised expected quarterly return after signpost is closest to -3.2. I think क्वेश्चन नंबर 6 पूछना चाहिए था
कि therefore should Raghav buy the hedge? आंसर होता है yes, he should buy the hedge. Because with the hedge the return is minus 3.2, without the hedge the return is minus 4.3. ठीक है ना? तो in that case it's relatively better. Okay, full screen please. So LOS B, LOS D कवर हो गया, नोट शेयर हो जाएगा, डोंट वरी, उसका कोई चिंता नहीं है, बट रिदम एंजॉय की है एंड आई डोंट थिंक यू हैव बीन स्ट्रेस्ड एट ऑल, ठीक है, विद द डिस्कशन. जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उस पर डिस्कशन हो गया. अब जो 4 LOS और है, जो 4 LOS और है, उनमें से जाहिर है फर्स्ट LOS वुड बी व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स. सेकंड LOS is about the fact that 1991 में जब इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था, तो अपने सब जन जो क्लास 11-12 में पढ़े हैं, 3 वर्ड्स पढ़ाया जाता है अपने को, व्हाट आर दे? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. LPG है ना. उसमें से लिबरलाइजेशन वाज अबाउट द फैक्ट दैट लाइसेंस राज वाज अबॉलिश्ड. लाइसेंस राज की हर चीज के लिए परमिशन, ऐसे अभी भी है, बट बहुत सारा चला गया था. प्राइवेटाइजेशन वाज अबाउट द फैक्ट दैट नाउ इंडिया बिकेम मोर अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां PSUs कमती होते गए, उनको धीरे धीरे डाइवर्ट करते जाएगा. एंड जो लास्ट वर्ड LPG, G वाज अबाउट व्हाट? ग्लोबलाइजेशन. इंडिया बिकेम अ मोर ओपन इकोनॉमी. इंडिया बिकेम अ मोर ओपन इकोनॉमी वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स, movement of labor, movement of capital was धीरे allowed. That's globalization. So LOSB is about globalization because geopolitics is definitely a study of globalization. The entire world after the Second World War has been on a horse of globalization. Globalization means integration across the world. ठीक है ना? तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हुआ है, बट देन देयर आर सर्टेन कंट्रीज व्हिच हैव नेवर एवर, लाइक नॉर्थ कोरिया, क्या नाम उसका, किम, ठीक है, तो व्हेन यू रिमेंबर यू अंडरस्टैंड, नहीं भाई वो अलग हिसाब किताब है. या रशिया या चाइना टू सम एक्सटेंट दे हैव नॉट दैट वे, बट देन चाइना हैज बेनिफिटेड आफ्टर 1970s 80s, जब कम से कम ट्रेड वाइज तो ग्लोबलाइज्ड हो गया. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वाइज हर कंट्री का क्या स्टांस रहा है. एंड 2008 के बाद the world has moved towards anti-globalization, okay, which may be called nationalism, although what debated word है, because we can't call anti-globalization as nationalism, because then anti-globalization seems to be a negative word, while nationalism seems to be a negative word or a positive word. Positive word. For the purpose of communication, when you become inward looking and all that, you're so called selfish, it's called nationalism. Okay, but साफ माफी मांगा ऑथर ने कि we are using nationalism loosely over here. Nobody should be taking it otherwise. ठीक है, we are not having the scope of getting into the definitions of nationalism and all that. ठीक है, तो LOSB is on globalization, LOSA is on क्या बोला मैंने, जियोपॉलिटिक्स, क्या होता है, कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं या कोऑपरेट नहीं करते हैं. तो LOSB is about globalization. LOSC is about 3 main institutions जिसका आपने जगह जगह पढ़ते रहते हैं. IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO. क्या? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO. और जिन्होंने क्रिएट किया था इंस्टीट्यूशन, वही इंस्टीट्यूशन का धज्जी उड़ा रहे हैं, स्पेशली WTO का. The US was the one which established the rules and all that कि फेयर प्रैक्टिसेस, WTO एक फोरम होगा जहाँ पे डिस्कस होगा. ट्रम्प बोलता गया WTO टेल लेने, मेरा मन टेरिफ पे था. ठीक है, तो IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, these were 3 institutions which were standing, and now it seems that they have lost their relevance. Okay, and last LOS is about geopolitical tools. Geopolitical tools यानी कंट्रीज क्या क्या टूल्स यूज करता है, ओके, टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट्स. व्हाट टूल्स कंट्रीज यूज टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट्स. समझ गए? तो वो टूल्स के बारे में डिस्कशन है. होता है ना कि अगर क्या वो डायलॉग देते हैं, अगर बातचीत से काम नहीं होगा तो
इसे ना कि पुअर हो गया मेरा डिस्ट्रिक्ट, अब इसे ना कि बात से काम नहीं होगा तो फिर अपने को लाभ देना पड़ेगा, ऐसा और लातों के भूत बातों से नहीं मानती है। तो इन दैट केस वो लात या बात या क्या चीज उसका बात की है, टूल्स सोफिस्टिकेटेड वे में किया वही बात है, ठीक है ना। अभी जब रशिया यूक्रेन को इन्वेड किया तो इन दैट केस ऑल सॉर्ट्स ऑफ सैंक्शंस वे इम्पोज्ड ऑन रशिया, economic sanctions, financial sanctions, military sanctions, all those were what? Tools of geopolitics. कि how do you arm twist somebody? ठीक है ना? And then there's a very powerful media globally which would speak all wrong about Russia and all right about the fact that पर जब US किसी को अटैक कर रहा है it is called liberation, और जब रशिया अटैक कर रहा है it is invasion, ठीक है ना। तो उस तरह का नैरेटिव रहता है, तो वो टूल्स का डिस्कशन है। टोटल 4 LOS करना है। फर्स्ट LOS इज व्हाट? जियोपॉलिटिक्स, कोऑपरेशन वर्सेस अदरवाइज। सेकंड LOS इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। थर्ड LOS इज अबाउट IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ठीक है, ज्यादा चिप के कर लिए ना IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, तो क्लास में मैं पहले सो जाऊंगा, तुम लोग उसके बाद, ठीक है। आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। एंड जो फोर्थ LOS है दैट इज अबाउट टूल्स, अंडरस्टूड। ये 4 LOS जो मॉरल साइंस टाइप डिस्कशन है, और 2 LOS अपना हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 LOS है इसमें टूल्स वाला बहुत कॉन्क्रीट लग रहा है, चलो उसको पहले से हटाते हैं। 3 तरह के टूल्स हैं which are used by different countries to promote their interests, One is national security tool. ये था लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाला लात, कि straight away डराना, okay, which China does with so many countries, which US also does. The reason why US is so much super powerful is because people know that if we go against it, there could be a case of even military conflict. वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को उठा लिया रातों रात, and you must have heard the news. एंथ्रोपिक क्लॉड को यूज किया for the purpose of knowing about it, because किसी के भी फोन को ट्रैक करके तो और सारे देख के पता चल सकता था तुम कहाँ क्या करने वाले हैं। So now the fight is going on between Claude and the US defense, this thing, where Claude is saying that we cannot allow this thing to be used uninterruptedly, जैसे WhatsApp बोलते हैं ना, क्या end-to-end encryption, so that nobody को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्सेस नहीं मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत मसल पावर लगाया कि WhatsApp हमें क्यों नहीं देगा, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैसेजेस को अपने को डिकोड करना है तो वाई विल क्या बोलते हैं फेसबुक, मेटा नॉट अलाउ, इट विल नॉट अलाउ, बिकॉज उसके खुद के पास नहीं है, इट्स end-to-end encrypted। ऐसा होता है ना कि आपने एक चीज को लॉक करके चाबी समुद्र में फेंक दी, तो यू योरसेल्फ कैन नॉट अनलॉक इट, यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। एनीवेज, तो चल रहा है वो। तो नेशनल सिक्योरिटी टूल्स, व्हाट नेशनल सिक्योरिटी टूल इज शोइंग योर मसल पावर, शोइंग योर मसल पावर। उसके बाद इकोनॉमिक टूल्स, और तीसरा है फाइनेंशियल टूल्स। इकोनॉमिक टूल्स, फाइनेंशियल टूल्स। Sanctions will fall under which tool? Sanctions they have categorized into financial. ऐसे economic financial दोनों mixed up हो जाते हैं, but they have categorized sanctions under financial. मेरे को economic भी लग रहा है, मैं भी agree कर रहा हूँ if I was sitting on that side, but they have categorized into financial. You must have heard about SWIFT. और या I may be wrong, हो सकता है economic tools लिखा हुआ है, I'm not very sure कि क्या लिखा हुआ है, we'll see it. ठीक है, you have heard about SWIFT. SWIFT is Society for Worldwide, देखो फुल फॉर्म के, what is SWIFT? Society for Worldwide इंटरबैंक व्हाटएवर, ठीक है, वो फुल फॉर्म से कुछ काम नहीं आएगा। बात ये है कि स्विफ्ट इज द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम।
स्विफ्ट इज द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, और वो जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है इट इज कंट्रोल्ड बाय यूएस। तो एज सून एज अ कंट्री गोज अगेंस्ट यूएस, सबसे पहला चीज जो यूएस करता है उसको स्विफ्ट से कट कर देते हैं। इट्स लाइक सेइंग दैट तुम कोई जीपे यूपीआई यूज नहीं कर पाएगा, जाओ। समझ गया? तुम्हारा बैंक अकाउंट वगैरह सब हटा दिया, कुछ नहीं। और बैंक अकाउंट में जो पैसा था पड़ा वो जब्त कर लिया। वो अलग बात है कि वो $300 बिलियन था। तो नंबर 1 तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो पैसा था जब्त कर लिया, नंबर 2 अब तुम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दिस इज टोटली फाइनेंशियल। व्हाट इज इट? फाइनेंशियल टूल। इकोनॉमिक टूल इज ऑल अबाउट ट्रेड, टैरिफ्स इंपोज करना, एम्बार्गो लगाना। ठीक है? आपके पास कोई क्रिटिकल मिनरल है जैसे चाइना के पास, और बोलना नहीं देंगे, which China did when Trump was jumping. So all the defense requirements of US were dependent upon that. So Trump became silent, उसके बाद चुप हो गए थोड़ा। तो नेशनल सिक्योरिटी टूल, इकोनॉमिक टूल, फाइनेंशियल टूल। एक चीज समझना, पढ़ने का 2 तरीके हैं। ये खुद से पढ़ो या टीचर से पढ़ो, 2 तरीके। एक तरीका ये है कि रीडिंग कर करके एकदम प्रिपेयर कर ले। नेशनल सिक्योरिटी टूल में क्या था, इकोनॉमिक टूल में था क्या था, फाइनेंशियल टूल में क्या था, 2 बार 4 बार 6 बार एकदम रिवाइज कर ले, जो बोलेगा बता देंगे। 5-7 दिन बाद सब भूल जाएगा, कर लेना ट्राई। दूसरा तरीका है आइडिया ले ले, पर आइडिया से तो एग्जाम में रॉन्ग हो सकता है। जैसे मेरा सैंक्शंस रॉन्ग हो रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। आइडिया लेने के बाद बढ़िया से क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चंस के थ्रू जब करोगे तो इट इज इंटरेस्टिंग। तुमको आइडिया है, अब तुम क्वेश्चन से कर रहे हो, इट्स इंटरेस्टिंग। और तुम पूरा का पूरा रगड़ रहे हो उसको, खासकर थियरी को, फॉर द पर्पस ऑफ सीमेंटिंग। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ स्टडी। You need an idea and then you can go to the question, and question should be deep with elaborate explanation और आंसर्स रीड करें उसका। तो जो अपने वहाँ पढ़ते बोर होके वो अपने और इजीली यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। समझे? दैट इज अबाउट द टूल्स। जैसे मैंने जो बोला टूल्स का, मेरा काफी टाइम हो गया, जब मैंने लास्ट पढ़ाया था तब देखा था, आई जस्ट नो द नेम्स ऑफ इट। तो आई एम इन द सेम पोजीशन एज यू आर राइट नाउ। एक बार देखें टूल्स का कैसा क्वेश्चन दिया है, एंड हैविंग सेड दैट आई एम टेकिंग अ रिस्क, आई एम टेलिंग दैट मेरे से भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है ना? लेट्स सी। तो टूल्स वाला LOS इज LOS नंबर E। आई एम गोइंग टू LOS नंबर E का क्वेश्चंस। A and B है, अच्छा ही नहीं। We don't have the questions. The staff is not provided. So it's the task. Tools का questions are not there. ठीक है, आज कोई बात नहीं है। अपने को टूल्स 3 पता चला। कौन कौन सा 3 टूल्स था? नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टूल और फाइनेंशियल टूल। ठीक है? माय फीलिंग सेज दैट इकोनॉमिक टूल इज ऑल अबाउट टैरिफ्स एंड ऑल दैट, जिसमें आप मूवमेंट ऑफ गुड्स सबको वो कर रहे हो। एंड जो फाइनेंशियल टूल इज अबाउट द पेमेंट सिस्टम, अबाउट द सैंक्शंस एंड ऑल दैट। ठीक है? दैट्स माय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। और नेशनल सिक्योरिटी टूल तो पता चल जाएगा वो जब बोल रहे हैं। दैट वाज द टूल वाला पार्ट। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO को साइड करते हैं, बेटा पार्बो ना। ठीक है? वैसे क्या लगता है IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO में से कौन सा इंस्टीट्यूशन पॉवर्टी एलिविएशन का झंडा गाड़ रखा है? पॉवर्टी। तीनों बोलते हैं सिचुएशन। सुनो 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 सुनो। जिन कंट्रीज में एक्सट्रीम पॉवर्टी है उन कंट्रीज में सपोर्ट किया जाएगा उनको। ठीक है? जिससे कि वो लोग का पॉवर्टी दूर हो सके। इट इज नॉट इन रिस्पॉन्स टू अ शॉक, इट इज जनरल सपोर्ट। होता है ना, जनरल सपोर्ट है। जैसे हो सकता है तुम कुछ फैमिली को, किसी फैमिली को 1000 रुपये देते हो जिससे उसका बच्चा पढ़ पाए,
It's a general support going on. This type of thing is done by World Bank. World Bank, clean drinking water चला जाए, ठीक है, legal system establish हो जाए थोड़ा वगैरह वगैरह. This is World Bank. IMF is generally in a crisis, जैसे श्रीलंका क्राइसिस हुआ, पाकिस्तान का होता ही रहता है, बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, 2011 में ग्रीक क्राइसिस हुआ था. जहाँ पे क्राइसिस होगा ना, प्रॉब्लम क्या है, if the world economy is globalized, there is a problem, contagious effect. कोविड को क्या बोल रहे थे, कंटेजियन, वही घर पे रहो. तो वैसे क्या है ना, in a globalized world, if one country is in a crisis, will that be limited to that country, or it will spread? Other countries will be affected by it. So IMF has to intervene to contain the crisis, to look at the structural issues कि वो crisis वापस से नहीं आए, उसको बेल आउट करता है subject to conditions. क्या इंडिया के साथ ऐसा हुआ है? क्या इंडिया के साथ ऐसा हुआ है? Yes, 1991. जितना भी आप बड़ाई सुन लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, क्या थे वो लोग यार, आज के दिन मोदी क्या है, क्या थे, ये जो भी आपको लग जाए. 1991 में जो इंडिया ने किया LPG, that was not a conscious decision. It had to be taken because इंडिया का वो हालत हो गया था. We did not have forex reserves to import perhaps 3 or 6 months का एनर्जी. समझ गए, हमारा वो हाल हो गया था, हमें पैसा चाहिए था, तो हम IMF के पास कटोरा लेके गए, कोटेड बाय इंदिरा गांधी. ठीक है, तो या उसके पहले वो तो थी नहीं उस समय, शी मस्ट हैव, कटोरा का लैंग्वेज इंदिरा गांधी ने कोट किया है. एक दिन मोदी का स्पीच था पार्लियामेंट में, तो वो रीड कर रहा था, तो हमें कटोरा लेके जाना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता है वगैरह बोल दिया. बोला ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 में बोला था. तो एक फुल मजा. फिर नेहरू जी का कोट कर रहे हैं, बोला आपका ही बता रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट. तो we had actually literally begged IMF to bail us out 1991 में, and IMF will not provide those funds like this. It will provide those funds provided you agree to what reforms. और वो reforms था LPG, तो conscious decision नहीं था. Okay, it was मरता क्या ना करता, वैसा वाला हाल. Anyways, तो IMF उस तरह का crisis situation में आता है. Not that I am saying that उसका और कोई रोल नहीं है, और भी रोल है, ठीक है, बट IMF का मेन वो है. WTO का तो उससे रिलेटेड, और वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी से रिलेटेड. उसके अलावा हम क्वेश्चन में पिकअप करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस का आंसर देख के और ज़्यादा पिकअप करेंगे, ठीक है. जिसको वो सूट नहीं करता वो बड़ा 4 पेजेस 6 पेजेस सबके ऊपर पढ़ लो, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के ऊपर. अब बचा 2 LOS. आई एम नॉट सेइंग खत्म हो गया, हमने किए नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, बट कम से कम कंफर्ट लगेगा तुमको कि यार मोर और लेस चैप्टर समझ में आ गया. जो फर्स्ट LOS है जियोपॉलिटिक्स. तो जियोपॉलिटिक्स में व्हाट इज जियो? हाँ, ज्योग्राफी. इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स नाम इज बिकॉज ज्योग्राफी हैज एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑथर ने क्या लिखा होगा, जियोपॉलिटिक्स का मतलब हुआ वी आर ट्राइंग टू स्टडी हाउ ज्योग्राफी इंपैक्ट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो इफ देयर इज अ कंट्री which is landlocked from all sides, यहाँ भी लैंड, यहाँ भी लैंड, यहाँ भी लैंड, यहाँ भी लैंड, पानी नहीं है, no sea route attached, फूड का इशू आएगा उसको, ओके, कनेक्टिविटी का इशू आएगा. दैट कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो दैट कंट्री हैज टू कोऑपरेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स. वेयर विल फूड कम फ्रॉम, वेयर विल एनर्जी कम फ्रॉम? It is dependent on the world to supply and all that. ठीक है ना? So therefore, it will be in a cooperative mode, and Switzerland has been one of the most cooperative countries. When you talk about integration with the world, it has good relations with all countries. It has never had bad relations. Trump is an exception. उसके बारे में भी कुछ बोल देते हैं. Same holds good for Japan. It had to be in a cooperative mode because there are scarcity of such stuff over there. Japan में भी. जबकि countries like US energy है, food है, water connect है. China
So they are endowed with resources. So they have a bargaining power. India doesn't have too much bargaining power when it comes to energy. It has to always remember that it has to listen to Russia, listen to the Middle East because of energy dependence. So does geography play a role in international politics? The answer is what? Yes, it does play a role in international politics. So geopolitics is a study of how geography affects international politics. However, the discussion is not related to geography alone. It is much broader. They have discussed about geopolitics में different actors. This is the stage and there are actors. Actors को divide कर दिया into state actors and non-state actors. आप नाम से समझ जाओगे. If we talk about the government of India, if we talk about the Indian military, and if we talk about Reliance Industries, इन तीनों में से which is a non-state actor? Non-state actor, which one? Reliance Industries. बाकी दोनों state actors हैं. तो state actors are those which command country's resources, which decide upon the policy and the country's resources. Sir, but non-state actors can also influence. Yeah, influence is possible. ठीक है? But otherwise, state actors are the government, the political parties, ठीक है, which decide upon what the country will do with the rest of the world. Non-state actors are the individuals, are the companies, are the NGOs, are the charities. All these are non-state actors. All of them have their own interests. Country का पहला interest होता है survival. Therefore, कितना ही important हो अपना पाकिस्तान के साथ economic ties. Suppose पाकिस्तान में such and such goods बहुत ही अच्छा मिलता है जो अपने यहाँ import होना चाहिए, या अपने यहाँ कुछ भी मिलता है जो पाकिस्तानी people को बहुत help करेगा, ठीक है? But ये सब logical होने के कारण भी ये नहीं होता है ना import export, because उसके ऊपर क्या आ जाता है? Survival. तो the economic angle is subservient to the national security angle. So if you talk about the interest of a nation, interest of a nation में सबसे ऊपर आएगा उसका survival, उसका security. जहाँ से उसको खतरा है, तो in that case all logic goes away. We are heavily dependent upon China for XYZ stuff, but when that Galwan thing happened, it's okay. We will not import. We will suffer economically as a result of it. They will also suffer, and they'll suffer more because of the fact that they are export dependent. So they had to ultimately provide some leeway. Na? So that was a very good tussle of geopolitics. That China का stance क्या था? Economics, but business or border को अलग रखो. That is what China was saying. कि border का issues अलग से discuss करते हैं और business as usual. India का stance क्या था? No, we look at it collectively. That was our biggest bargaining power, because we knew that China depends on India for the purpose of its export market. Understood? And that is the reason why China agreed to some sort of relaxation on the border. That goes to show कैसे negotiation होता है, how negotiations take place. If there is a friend of yours and some other person attacks the friend, तो obviously उस other person के साथ भी आपका enmity होता है. Factual बात है, common sense. तो in that case ये जो तीसरे के साथ जो relation है वो भी geopolitics में काम आता है. For example, there is no need for India and Turkey to have SAR relations, but we have SAR relations because Turkey has always been supporting Pakistan. Whenever there has been any proposal, this or that, Turkey का हमेशा statement India के against में आता है. Otherwise, India और Turkey का बहुत healthy relation हो सकता था. तो Turkey का friend हो गया पाकिस्तान, ठीक है? Because of religious reason, because of whatever reasons, and therefore, once again, there is a geopolitical tension. We cannot be that cooperative to Turkey, not Turkey to us. Understood? तो जो stuff लिखा हुआ है वो बहुत common sensical है. However, when we talk about multinational companies, say the likes of Disney or the likes of whatever this Meta,
they would like US or India where there should be cooperative relation or anti-cooperative relation. Cooperative. So many times the non-state actors are really wishing that there should be cooperation between the countries. But the state actors have other objectives. When we talk about other objectives, we talk about the political party under power. कौन सा political party power में है? The example was Bangladesh में Sheikh Hasina. When she was toppled, तो obviously India का बांग्लादेश से relation सार हो गया. That's a perfect example of how the political setup matters. किसी किसी कंट्री में 2-2 साल में इलेक्शन होता है, किसी किसी कंट्री में 4-4 साल में, किसी किसी कंट्री में 5-5 साल में. अगर इलेक्शन ज़्यादा साल में होता है, 5-6 साल में से 10-10 साल में इलेक्शन होता है, मान लो अगर होता कहीं तो उस केस में उसका प्लस ये है कि जो भी गवर्नमेंट अपॉइंट होगा, क्या वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाएगा? यस. लॉन्ग टर्म डिसीजंस लाइक सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लाइक क्लाइमेट. बट अदरवाइज अगर 2-2 साल में इलेक्शंस होता है तो जो भी गवर्नमेंट आएगा उसको पता है 2 साल बाद फिर से उसको इलेक्ट होना है. विल इट बी एबल टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन, विल इट टेक शॉर्ट टर्म डिसीजन? शॉर्ट टर्म. So the stance of a government towards geopolitics will also depend upon the tenure, its ideology, its interests, country का interests. ये सारा discussion किया हुआ है LOS-A में. We will carry it out I think next class. आज के लिए यही मानते हैं अपने कि LOS नंबर D और LOS नंबर F हो गया. कौन सा? LOS नंबर D और F हो गए. मैं मान रहा हूँ मैंने टूल्स वगैरह कुछ नहीं करवाए. एक मिनट. तो D और F जो हो गया है अपना LOS D और F, उसका नोट शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना. एंड अपने बाकी का LOS नेक्स्ट क्लास करते हैं. ओके. एक और चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल बी गोइंग इनटू, ठीक से सुन लो, फिक्स्ड इनकम का लर्निंग मॉड्यूल 13, 14, 15, 16, मैंने वो बीच में 3-4 यार ये क्रेडिट का. फिक्स्ड इनकम में 4 पार्ट्स है. फिक्स्ड इनकम में 4 पार्ट्स है. 1 पार्ट इज बेसिक्स थियरी, सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिकल, द मेन पार्ट LM6 से लेके 12, फिर एक पार्ट है क्रेडिट, और लास्ट पार्ट है सिक्योरिटाइजेशन वाला पार्ट जिसमें LM19 बाकी है. मेरे को लेना है तो मैं बीच वाला पार्ट क्रेडिट कराऊंगा. सर क्या उसके लिए बाकी फिक्स्ड इनकम कवर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा. उसके लिए केवल आप LM6 का फर्स्ट क्लास अगर कर लेते हो तो यू आर इन अ सिचुएशन टू अटेंड द क्लासेस एंड देयर इज नो रीजन व्हाई समबडी विल से दैट हम नहीं कर पाएंगे. LM6 का फर्स्ट क्लास इफ यू डू, तो जब मैं चालू करूंगा, कोई भी न्यू ज्वाइनी भी है वो फिक्स्ड इनकम में लर्निंग मॉड्यूल 6 उसका फर्स्ट क्लास अगर कर ले तो इन दैट केस वो इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर कर पाएगा. और मैं अज्यूम करूंगा कि जो भी बैठे हैं वो लोग करके बैठे हैं, ठीक है ना. सो दैट यू कैन इंटीग्रेट इनटू दैट चैप्टर वेरी वेल. ओके, थैंक यू. हैप्पी होली, ठीक है. यहाँ पे लोग विश कर रहे, को भी याद आ गया. एंड प्लस वी हैड अनाउंस्ड स्पोर्ट्स डे और व्हाटएवर, ठीक है. मैं क्लास में अनाउंस नहीं किया, मेरे को याद ही नहीं रहते. तो